दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट एट गेट एंड दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड AIR 18। उसके बाद मैंने एक अपना स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं किन किन सब्जेक्ट्स के साथ चालू करूंगा। सर गेट की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बायजूस एग्जाम प्रेप पे मैंने दी थी, काफी सारी टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। ये आपका एक बार यूज तो आपको देखना ही चाहिए कि कैसा है। Hello students, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers here and listen to their inspiring success journey. This is Abhinav Negi, your host for today, and we have here Swastik Sharma, who has secured All India Rank 18 in GATE 2022 Civil. So Swastik, I welcome you. To start with, अपनी preparation journey अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. Hello sir, thank you for having me here. And hello everyone, my name is Swastik Sharma. I come from Bhopal, Madhya Pradesh. I graduated in the year 2020 from IIT BHU Varanasi. Since then, I've been preparing for various competitive examinations like GATE and engineering services. This is my third attempt at GATE and this year I've secured AIR 18. Okay, so Swastik, when you decided to appear for the GATE exam and what motivates you to continue this journey, because I believe that of course for 8 to 10 months you are continuously preparing. So when you decided that yes, this is the exam I will be targeting, and what motivates you throughout the journey? Yes, sir. So, sir, I knew about these examinations like GATE and engineering services, and I knew that I will be appearing for them in my fourth year. But then I came to know that I will not be eligible for engineering services examination due to the age limit criteria. So I made up my mind that I will be appearing for GATE examination. So it was maybe at the end of my third year that I started my preparation, the fully fledged preparation for this examination. And it has been a long time, but what we can do is just maintain a good discipline and maintain a good schedule which we can follow. That can motivate us to continuously go for preparing for these examinations. Okay, Swastik, as we know that GATE is one of the toughest and challenging exam. More than 1,30,000 students are preparing for it and giving the exam. And out of this, only few are there who are clearing it. And some of you who are securing so much top ranks, like you have secured All India Rank 18. So during this preparation journey, you might be facing some challenges. So what are those challenges that you have faced and how you have overcome those challenges? Yes, sir. Sir, first most challenge that I can remember was that at our time when it was 2018 and 2019, there were not much very online helps available. So now we have those after COVID period. We have various coachings running online. So it was only me with my books that I will have to decode them because since my college was in Varanasi, so we didn't have any coaching there, a good coaching there to help me throughout my preparation. So I started slowly one by one subject and one by one book to decode them and make notes of it, because these are very thick books that you have to decode by your own. So that was a big challenge for me because I didn't know that how should I proceed with this examination. So at that time, my seniors at college, they helped me a lot. They guided me throughout my college time. So that helped me a lot. तो स्वास्तिक, आपको बायजूस एग्जाम प्रेप के बारे में कैसे पता चला? हाँ सर, मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उन्हीं ने मेरे को इस ऐप के बारे में बताया था कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज हैं, यहाँ पे डाउट फोरम सेशन है और यहाँ पर काफी सारे लेक्चर्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो उन्हीं के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा था इस ऐप के बारे में। ओके, स्वास्तिक, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जितने भी टॉपर हैं, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 70 हो, रैंक 80 हो, सबका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम नहीं होगा। और मैं अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना भी चाहूंगा कि आप स्वास्तिक से, किसी भी टॉपर से आप हमेशा इंस्पायर होइए, फॉलो करने का जरूरत नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली को कॉपी करेगा तो फिर वो धोनी नहीं रहेगा। एवरी क्रिकेटर इज हैविंग इट्स ओन स्टाइल। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपका वो स्टाइल क्या था जिससे आपको गेट में इतना अच्छा रैंक, ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल हुआ? सर, जब वही जर्नी मैंने अपना चालू किया था तो मैंने काफी लोगों से हेल्प ली थी, काफी लोगों से मैंने एडवाइस ली थी कि कैसे इसको चालू किया जाए।
तो वही कि जैसे सारे सीनियर्स ने मेरे को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी थी, उसके बाद फिर वो मेरा ही एक स्टेप था कि अब मेरे को कैसे आगे प्रोसीड करना है। उनने कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट किए, तो क्या मुझे उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ चालू करना है। तो सर वही था कि आप सबका जब मैंने सुन लिया सारे सीनियर्स का, इनफैक्ट जो पास आउट भी हो गए थे हमारे कॉलेज से, कुछ अच्छी रैंक्स भी ला चुके थे, उसके बाद मैंने एक अपना स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं किन किन सब्जेक्ट्स के साथ चालू करूंगा और फिर कौन सी बुक्स को फॉलो करूंगा और कब टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, कब शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, कितने कंसाइसली बनाऊंगा। तो वो सब सर फिर अपनी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी। ओके, स्वास्तिक, हाउ डिड बायजूस एग्जाम प्रेप हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? यस सर। सर गेट की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बायजूस एग्जाम प्रेप पे मैंने दी थी, काफी सारी टेस्ट सीरीज मैंने दी थी, और जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे जो काफी अलग थे या फिर मैं बना नहीं पाया, अलग कॉन्सेप्ट था उनमें, तो फिर उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया करता था। वहां पे डाउट फोरम सेशन थे जैसे कि मैंने बताया, उनसे मैंने अपने डाउट्स पोस्ट कर दिए, काफी जल्दी रिप्लाई आ जाया करता था। तो सर इस वे में मेरी काफी हेल्प हुई थी। तो इस पूरी प्रिपरेशन में आपने बायजू एग्जाम प्रेप के टेस्ट सीरीज दिया, तो आपको सबसे अच्छा चीज बायजू एग्जाम प्रेप की ऐप के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में या टेस्ट के बारे में क्या आपको सबसे अच्छी चीज लगी, जिसको आपको लगता है कि यार इस वाली चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया ऑल इंडिया रैंक 18 लाने में? सर टेस्ट का जो एनवायरनमेंट था, जो मुझे काफी लगा, सिमिलर लगा एक्चुअल एग्जाम के, कि जो एनवायरनमेंट जो एग्जाम का है, जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद वही भी असली एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन से, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली। अच्छा स्वास्तिक, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब रिजल्ट आया उस समय रात के 10:30 या 11 बज रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? सबसे पहले आपने कॉल किसको किया? आपका रिएक्शन कैसा था? वो मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा वो मूवमेंट था आपकी लाइफ में? सर था तो मैं घर पे ही, एक फ्रेंड का ही कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे रैंक प्रेडिक्टर्स होते हैं, तो हम पहले से ही अपना मार्क्स और पहले से हमें अपनी रैंक पता चल जाती है कि क्या आ सकती है हमारी, क्या अप्रोक्स रैंक आ सकती है। तो उतना एकदम शॉक या सरप्राइज तो नहीं था, मतलब तब तक मालूम पड़ गया था कि क्या रैंक आने वाली है। तो बस सर फैमिली के साथ मैंने शेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे रैंक आया, अच्छा लग रहा था बस। और आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था? आपके माताजी पिताजी आपसे भी ज्यादा खुश होंगे ऑब्वियसली। हाँ सर, वही मतलब सब लोग काफी खुश थे। ओके, क्या आप बायजूस एग्जाम प्रेप को अपने जूनियर्स को या जो भावी एस्पिरेंट्स हैं, कमिंग एस्पिरेंट्स हैं, क्या उनको आप रिकमेंड करेंगे बायजूस एग्जाम प्रेप? डेफिनेटली सर, मैं अपने सारे जूनियर्स को, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरे कुछ जूनियर्स हैं जो अभी उनको यूज भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपका एक बार यूज तो आपको देखना ही चाहिए कि कैसा है। ओके, तो वो 3 आदमी मैं आपसे पूछूं जिन्होंने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको लगातार मोटिवेट किया हो, या जिनको आप अपनी सक्सेस का श्रेय देना चाहते हो, तो वो 3 आदमी कौन होंगे आपके ख्याल से? सर कॉलेज के बाद से कोविड में मैं अपने घर पर ही रहा हूँ, और घर पे जैसे मेरे अलावा मेरे 3 फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी सिस्टर। तो सर उन 3 को ही मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, थैंक यू उन्हीं को बोलना चाहूंगा कि उनने काफी मोटिवेटेड रखा मेरे को थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। ओके, और स्वास्तिक, जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने किसी भी मटेरियल से, बुक से, रेफरेंस बुक से, नोट से आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने जूनियर्स को कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कितने क्वेश्चन उसको अदर देन पीवाईक्यू लगाने चाहिए? सर जैसे कि कोई भी अगर हम मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई भी अगर हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया है, तो पीछे 20-25 सवाल रहते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं, आप उन सवालों को लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल मैं तब सजेस्ट करता हूं लोगों को जब एग्जाम पास हो, जैसे गेट एग्जामिनेशन फेब में रहता है, आप चालू कर सकते हैं अक्टूबर या मे बी सितंबर में, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। अच्छा स्वास्तिक, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं खुद बहुत क्यूरियस भी हूं वो चीज आपसे पूछने के लिए। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिस्पॉन्स की के बाद आपको पता भी चल गया कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन से वो +2 -2 हो सकता है। ऑफ कोर्स हमने भी सेशंस लिए थे यूट्यूब में कि इस मार्क्स पर इतना रैंक आने का चांसेस है, वो भी आपने देख के रैंक प्रेडिक्ट भी कर लिया होगा। तो एग्जाम देने के बाद, रिस्पॉन्स की आने के बाद, ये बहुत आसान है ये बता पाना कि मैं किस रैंक के आसपास आ जाऊंगा या मेरी रेंज क्या रहेगी रैंक की। लेकिन इसके विपरीत एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भी आप इतना श्योर थे यार मेरा डबल डिजिट रैंक आ जाएगा। एग्जाम देने के बाद तो फॉर श्योर, क्योंकि आजकल रिस्पॉन्स की है, आंसर की है, आईआईटी भी अपना आंसर की दे देता है, हल्का फुल्का नॉर्मलाइजेशन से इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले, जनवरी में, दिसंबर में या सितंबर अक्टूबर में, उस समय आपको पता था कि यार मैं फोड़ने वाला हूं एग्जाम, मेरा डबल डिजिट रैंक आने वाला है या बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, उस समय आप श्योर थे? नहीं सर, बिल्कुल भी श्योर नहीं था। इनफैक्ट जो जैन था इस ईयर का, वो काफी अनसर्टेन था मेरे लिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, आ रहे थे, कुछ के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी श्योर नहीं था इनफैक्ट था कि 3 डिजिट रैंक ना आ जाए।
100 के बाहर ना चले जाऊं, तो वो डर तो हमेशा से था, इसलिए प्रिपरेशन तो कंटिन्यूस करनी पड़ रही थी उसकी। तो मैं सारे एस्पिरेंट से यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, एग्जाम के बाद श्योर होना आज के समय में, क्योंकि रिस्पॉन्स किया जाता है, आंसर किया जाता है, काफी आसान है। लेकिन एग्जाम से पहले श्योर होना, स्वास्तिक जो खुद ऑल इंडिया रैंक 18 लाए हैं सिविल में, वो भी श्योर नहीं थे। लेकिन उनकी यह बात कि वो लगातार आगे बढ़ते चले, अपने दृढ़ निश्चय उन्होंने ठान लिया कि जी हाँ, मेरे को गेट क्लियर करना है, अपना टेक्निकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और वो लगातार उस पाथ पर सीधे आगे चलते गए। ओके, तो आप भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जैसे स्वास्तिक ने कहा कि वो श्योर नहीं था, आप में से भी बच्चे बहुत सारे श्योर नहीं रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पर उस अनसर्टेनिटी के कारण डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चॉइस आप ही का है कि आपको मानना है या ठानना है। स्वास्तिक ने ठाना और वो करके दिखाया। और मैं सारे जितने भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी इसी डेडिकेशन के साथ लगातार चलते जाइए, क्योंकि अगर आपने 6 से 8 महीने कंटिन्यूस हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको स्कोर करने से या ऑल इंडिया टॉपर लाने से रोक सके। तो स्वास्तिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप यहां पर आए, अपने जूनियर से, फ्यूचर एस्पिरेंट से आपने अपने थॉट्स शेयर किए। तो स्वास्तिक, वंस अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड अस बायजू एग्जाम प्रेप टीम, योर पेरेंट्स प्राउड। अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशिंग यू अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से स्वास्तिक शर्मा ने एक दृढ़ निश्चय ठान लिया था कि मेरे को गेट में टॉप रैंक या अच्छा मार्क्स हासिल करना है, और वो उस निश्चय के लिए लगातार आगे चलते गए, कॉन्सेप्ट पढ़ते गए, टेस्ट सीरीज देते गए। और जब ये सारी चीजें आप करेंगे उस दृढ़ निश्चय के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आप भी इस स्पॉटलाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय, वो धैर्य आप में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट। स्टे ट्यून्ड।